What's up, adventurers, and welcome back to another unfiltered episode of Pop Snap and Zap. This week, we're diving headfirst into the dirt and dreams of two absolute beasts in the Indian adventure sports scene. First up, we've got Virendra Mali. Next, we shift gears with Adil Teli, the man who has not one, but two Guinness World Records. He's the human embodiment of persistence, cycling from Kashmir to Kanyakumari in just under 8 days and performing Leh to Manali in under 30 hours. I feel like a lot of people don't understand how expensive mountain biking can be. They're like, cycle hi to chahiye. Like, what makes it so expensive? There are not many facilities in India which make them here. All of the parts we get are imported, and then with the import taxes and all, it gets very expensive. 2 to 3 lakhs is where you get something decent which you can actually use. Biggest question that a lot of riders have, like all these downhill guys, they keep fighting road cyclists keep fighting downhill on the same idea that which one is more dangerous. I think both are different sports. रिसेंटली मैंने आपका कोई वीडियो भी देखा था, फिर कोई ग्रुप क्रैश हुआ था. जैसे मौली ने बोला कि आई थिंक रोड साइकिलिंग इज लिटिल बिट टफर देन एमटीबी साइकिलिंग, क्योंकि हमारा एक पूरा पेलेटॉन चलता है जिसमें ऑलमोस्ट 160 राइडर्स होते हैं, 140 राइडर्स होते हैं. अगर एक भी गिर गया फ्रंट पे तो वो पूरे 160 को लेके जाएगा. तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट इन एमटीबी. पहले तो ये आइडिया कैसे आया कि मेरे को ये करना है, पूरा कश्मीर टू कन्याकुमारी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है? Achieving those records was very mentally exhausting, physically exhausting. I think I'm really thankful to my crew members. उनके बगैर इस राइड को कंप्लीट करना और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना एक इम्पॉसिबल टास्क था. What's up, adventurers, and welcome back to another unfiltered episode of Pop Snap and Zap, a podcast where adrenaline meets authenticity. This week, we're diving headfirst into the dirt and dreams of two absolute beasts in the Indian adventure sports scene. First up, we've got Virendra Mali, national champ contender, trail builder, and the guy who basically eats here for breakfast. Next, we shift gears with Adil Teli, the man who has not one, but two Guinness World Records. He's the human embodiment of persistence, cycling from Kashmir to Kanyakumari in just under 8 days and performing Leh to Manali in under 30 hours. We'll uncover what drives this iron-willed cyclist and why road cycling might just be more tougher and crazier than downhill mountain biking. And we'll find out what he does to balance breaking records and breaking limits. Get ready for the raw, the real, and the downright ridiculous as we dive into the minds of two legends who live life on the edge. So strap in, smash that play button, and let's ride into the world of fearless jumps and tireless persistence. I think last episode we talked with Aaron and Titus, two of your teammates. Yeah. And they were talking about like how expensive the sport is. Yeah. And I feel like a lot of people don't understand how expensive mountain biking can be. They're like, cycle hi to chahiye. Yeah. But like, can you help us understand why it's expensive? Like, what makes it so expensive? First, mountain biking is like a new, like downhill mountain biking is not like it's pretty new kind of, but not that new also. So like the equipment which is manufactured for downhill mountain biking, especially racing bikes, is like pretty high end and materials and everything. So like there are not many facilities in India which make them here. So all of the parts we get are imported, and then with the import taxes and all, it gets very expensive. And it's not that mountain bikes themselves are not cheap. So even outside prices are pretty expensive. Yeah, I was going to say, even without the import costs, it's expensive. And with the import costs here, it's like very expensive. Like if you want a really solid race bike, 4-5 lakhs. If you want a beginner full suspension bike, 1 to 2 lakhs. 2.2 to 3 lakhs is where you get something decent which you can actually use like for a few years without it breaking apart. You can ride like a cheap hardtail on like 30,000, 40,000, which is what I started with. But that thing will only last you like a year. Like it'll start breaking. Every day you might have a problem with that bike. It is an expensive sport. Aapka bhi, how to say, yours is also expensive. Definitely, my bike is very expensive. I think as compared to mountain bike, it's more expensive. जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक इट्स नॉर्मल बाइक, इट्स 3000 बाइक
जब मैंने पहली 3,000 bucks, मतलब 3000 में मैंने परचेज की थी वो. 3,000 rupees. Yeah, it was the first buy in 2000. The only competitor ride के लिए 3,000 rupees. Yeah, in 2013. But आज का जो मेक मैं ड्राइव कर रहा हूँ it's 6.6 lakh rupees. So it's a huge gap. तब मुझे पता चला जब मैं कॉम्पिटिशन में चला गया कि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स लगते हैं अगर हमें एक अच्छी खासी पोजीशन पे compete करना हो. Yeah. But there is this one point of how much you spend. Like एक point पे ऐसे होते हैं कि उसके बाद तुम जितने पैसे डाल रहे हो उसमें थोड़ा माइनर चेंजेस ही होता है. Like I'll say down in mountain biking at like range of 4-5 lakhs you'll get something that be like good enough to like compete, you know, like that bike won't hold you back. And उसके आगे all the money you're spending is for like more reliability or like slight performance improvements, some weight improvements and things. Yeah. There's also the training part. I remember, I don't know what, but I think Matej was talking to me and he was telling me that there's this guy who went abroad to train mountain biking, and or maybe it was Chris from Nepal, not sure भी, but they told me that कि इन्होंने 10 लाख खर्च किया था अपने ट्रेनिंग पे, and in total they had an improvement around of 2 seconds in their timing. So that 2 seconds of timing cost them 10 lakhs. So like even training is pretty expensive to improve. I think that's like this motocross kid from Pune. Yeah, I think that not fair. Abhijit told you, and yeah, his dad spent 10 lakhs to get you 2 seconds faster. So like, yeah, which I can count it. It's not all about the 10 lakhs. It's all about almost 2 or more than years to break the pyramid. Basically. So it's the time. The time does cost money though. Obviously. Or trainer, equipment, maintenance. Oh wait. So like let's go beyond equipment. Let's go and tackle this, biggest question that a lot of riders have. Like all these downhill guys, they keep fighting road cyclists keep fighting downhill on the same idea that which one is more dangerous. कौन से में ज़्यादा खतरा है? I think both are different sport. अगर मैं रोड साइकिलिंग की बात करूँ, I think it's little bit more dangerous than MTB. बिकॉज MTV में आपको सिर्फ फॉल होने का खतरा रहता है डाउनहिल में, लेकिन अगर हम रोड साइकिलिंग की बात करें इसमें आपको ट्रैफिक सेफ्टी देखनी पड़ती है, रोड कंडीशंस देखने पड़ते हैं, एंड ओबियसली स्पीड रहती है इसमें. तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू MTV. ओके, आपको क्रैश हुआ है फॉर एग्जाम्पल? डेफिनेटली आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रैशेस. जब से मैंने गेम शुरू की है मैं बहुत बार गिरा हूँ. इनफैक्ट रिसेंटली मेरा क्रैश हुआ था 88 स्पीड km/h पे, और वो भी हाईवे पे क्रैश हुआ था. शुक्र है पीछे जो गाड़ियाँ थी उन्होंने कंट्रोल किया वहाँ पे रोकने के लिए. लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि MTV से अगर डेंजरस साइकिलिंग है वो मे बी रोड साइकिलिंग, क्योंकि इसमें भी ट्रैफिक का ध्यान रखना पड़ता है. बट थैंक गॉड कि मैं सेफ था वहाँ पे. बट थोड़ी बहुत तो खरोच वो तो आती रहती है हमारी गेम में. बट या आई मैरी. मैंने सुना आपके एक बार कोई 72 स्टिचेस या कुछ लगा था. अभी मैंने जब मैं रिसेंटली एक बार गिरा था तो मैं ट्रेनिंग करके ख़त्म आ गया. जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई तो मैं जस्ट एक शॉप पे चला गया. मुझे दूध लेने जाना था क्योंकि ऑब्वियसली हमारा बड़ा डाइट का ख्याल रखना पड़ता है. मैं जस्ट ट्रेनिंग से वापस आ गया. वापस अभी ख़त्म होने वाली थी ट्रेनिंग तो मैं गिर गया. जब मैं गिर गया तब पता नहीं चला. मैंने पैर की तरफ देखा तो वहाँ पे पूरे 1-2 उंगलियाँ कट चुकी थी. तो आई वेंट हॉस्पिटल. फटाफट वहाँ पे मैंने चेक किया डॉक्टर से कि आपको 5-6 स्टिच आ जाएंगे. तो उस टाइम मुझे 7 स्टिच आई थी. उससे पहले जब मैं गिरा था तब भी 7 स्टिच आई थी, लेकिन वो नी में आई थी. तो इसमें इंजरीज तो पार्ट ऑफ गी बहुत गिरते रहते हैं ऑब्वियसली. Yeah, like I feel मुझे भी like road biking और sketchy लगता है honestly, because in mountain biking if you want to hit some big jump which you're not sure about, but you calculate the risk, you are like, I feel like crashes are the worst when you don't expect them because you don't brace yourself, and the worst is when वो जो risk होती है it's not calculated, like क्योंकि road biking के crashes usually are external कि पहले टर्न में crash हो गई आगे या कोई आके उड़ा गया तो को lit, like, and even training is always like because I've like pedaled to the hill many times, so like I look back more than I look in the front, like क्योंकि people bark in the sides, you have to like cut to the roads, then you have to watch if someone is coming high speeds there. So I feel like
road biking is scary in that way because the factors are external. Mountain biking, I've had like many big crashes, but like when you know that yeah, there is a possibility of me crashing here because you haven't done this before or something. So you like kind of brace yourself. You roll dirt, you can slide on dirt, but then again, like sometimes you're just unlucky and you hit the tree face first and you wake up in a hospital, and that could also. Did that happen to you? No. Hey, so Chris. But yeah, like you can get hurt really bad on mountain bikes also because mountains, there is a lot of gravity, momentum. You can hit like a very sharp rock. Urban racing, if you think about it. Sketches from downhill mountain biking. There was a race for Iceland, no, recently. Yeah. Like all the sharp corners of a wall, staircases, the fences, like the railings. Imagine you just go like flying into a railing. That's what, like, you wouldn't want that. But if you're skilled enough, as you guys. Yeah. So like the risks are calculated, but in road biking, I feel like it's scary because it's always like oh, yeah. when जब भी हमारी बात वो भी इंडिया रोड्स की आती है तब तो ज़्यादा ही डेंजर है. इंडिया रोड्स अब थोड़े बेटर हो गया. नोएडा में प्रैक्टिस करते हैं आजकल. like literally lights in the night you need on your back if you're cycling on the road because lights हर street पे ज़्यादा नहीं होती है, कभी कभी कोई किसी पे होती नहीं है, like highway especially, you know, like, and you have to make sure that you're visible in the night. You cannot go all black stealth. You're gonna get hit. नहीं फिर भी मैंने बाहर भी रेसिंग की आउट ऑफ इंडिया. मैंने बहुत डिफरेंस फील कम्पेयर टू इंडिया. वहाँ के जो ऑब्वियसली जो लोग ड्राइव करते हैं उनको पता है आगे स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग कर रहा है. बट जब बात इंडिया की आती है, इंडिया के रोड्स की आती है, जब यहाँ पे लोग ड्राइव करते हैं इनको सामने स्पोर्ट्स पर्सन नहीं दिखता. इनको बस दिखता है कि एक साइकिल वाला चल रहा है, हिट भी होता है. तो मुझे लगता है कि वो चीज़ अभी बहुत डिफरेंस है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. Yeah. There's difference in mentality. India has so many people. Like I've seen many people like giving extra space while they pass us. Like एक गाड़ी का जगह देता है कोई लोग, and some people just go cut side से एकदम. तो लोगों के हिसाब से भी होती है. But again, Indian roads पे से like we love our country. Like the roads are just narrow, and sometimes there's not enough space for a cycle and a car to fit in one lane. So उतना तो होता है. तो but yeah, it is factor. Okay. So, what about you, Malik? Injuries? I know you had a few of them. That comes with the sport in general for everyone. Like, what was the scariest moment you had? Scariest moment. Hey, one of my first crashes was something very, like, I think that was the first time I felt like something disabled. Me and Abhijit back over made this very sketchy looking ramp because we were trying to do a backflip. You made a wooden ramp or like? Yeah, wooden ramp on a dirt ramp. So like a mixture of both of them. And it was like fucking steep, okay? And we are trying that. And we're just trying to catch more speed so to get more radar and testing it basically. I hit it and like hit a few times and trying at higher speeds. I did this jump and then I hit a tree mid-air on my shoulder. I fell down and then I couldn't move my shoulder. So that was like my first time and I was like, oh shit. Like I need help getting home, you know, that moment, you know, like, cause I couldn't walk my bike also. But good, like I had my friend with me. So that was like the first crash. I was like, oh. But then uske baad, the worst injury was like simple as like a training ride, whereas I'm just trying to corner. I know, yeah, the first run of the day I was taking it chill and then the front wheel just washed out and I fell straight on my knee, like just a bad angle of crashing, and then I hurt my ACL. And then that has been pretty like bad, you know, like for 7-8 months is still there. So crashes can be bad. Sometime. आपका रिसेंटली मैंने आपका कोई वीडियो भी देखा था, फिर कोई ग्रुप क्रैश हुआ था. यस रिसेंटली हमारे नेशनल चैम्पियनशिप में क्या था, इसलिए मैंने अभी जैसे माली ने बोला कि आई थिंक रोड साइकिलिंग इज़
इट इज़ बिट टफर देन MTV साइड टीम, क्योंकि हमारा एक पूरा पेलेटॉन चलता है जिसमें ऑलमोस्ट 160 राइडर्स होते हैं, 140 राइडर्स होती है। अगर एक भी गिर गया फ्रंट पे तो वो पूरे 160 को लेके जाएगा तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट इन MTV। तो रिसेंटली हमारा जैसे एक क्राइटेरियम रेस हुई थी और वहाँ पे एक ग्रुप का क्रैश हो गया था। तो उस ग्रुप में मैंने अभी बोला कि हमारे इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत सारे साइकिल्स ब्रेक हुए अभी वहाँ पे, और आगे आधो लड़कों के तो पूरे चेहरे भी बिगड़ गए, स्क्रैच वो ये। तो क्योंकि जब भी हम एक ग्रुप में राइड करते हैं तो हम लोग जैसे एक पेलेटॉन चलता है, बीच में अगर कोई राइडर हल्का सा भी मूवमेंट कर लेता है तो क्या होता है कि वो उसका जो व्हील फ्रंट व्हील है वो आगे वाले व्हील के साथ टच हो जाता है। तो जब वो टच हो जाता है उसके पीछे पूरी लंबी लाइन होती है, तो बस वो पूरी लाइन ही गिर जाती है। तो इसकी वजह से हमारे में ज़्यादा क्रैशेस होने के चांसेस रहते हैं। So थोड़े this has become a bit dim in the sense कि हमने crashes याद कर लिया. We're trying to convince people to mountain bike and take road cycling. तो ठीक है. Besides that, like when it comes to the actual reason for you doing the sport, what's kept you going like up to now? Like इतने सालों से कर रहे हो. Like it could have been boring in one point or it could have been too scary at one point. Like अभी भी क्यों? Why are you still doing long distance racing or? आई थिंक मेरा पैशन है जो मुझे ओब्वियसली नेचर के क्लोज लेते जा रहा है, क्योंकि मैंने जब साइकिलिंग स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट इन 2013, तब मैं एज MTB ही में ही आया। मेरा फर्स्ट नेशनल एज अ सब जूनियर नेशनल मेरा MTB में ही है, एंड आई गॉट 7th रैंक इन केरला। लेकिन मुझे वो किक नहीं मिली MTB से, so, क्योंकि एक ही एरिया, एक ही जंगल, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लोर करना है, नई चीज़ें देखनी है, तो उसके लिए आपको लॉन्ग बेसिस में जाना ही पड़ेगा टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, टू कनेक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो आई थिंक कि वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई कि मैं रोड साइकिलिंग की लॉन्ग डिस्टेंस में इवेंट्स में चला गया, क्योंकि उसमें मैं बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, नए लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है और उनके कल्चर को देखने का मौका मिलता है। तो उसकी वजह से मैं ट्रेंडर्स में मैंने पार्ट लिया था। Mali? हमारा तो long distance नहीं है. How do you see different places? Like I started like I like mountain biking basically. Like the whole feeling of racing a bike is about like it's somewhere like you get lost completely, and like you get so focused and zoned into something that you forget everything else happening. And even just a fun ride on the mountain, it's always refreshing, like it takes you out of everything that's been going on and everything. So it just feels very calm and peaceful. And then again, the creative freedom of trail building also. Like I can make whatever I want to ride, like it's like I'm building my own dream. Like, see, I woke up, I'm thinking about, I watch a video, I'm like, oh shit, like this, I want to hit a jump which is like angled like that into a left hip. Then I'm like, oh, then I go scouting to the hill, I just find the terrain, I see the things, I see multiple options, and then I build it. And after I build it, when I ride it, it like feels like I achieve something from my imagination in the real life. And like that's the like creative freedom I get in mountain biking, and it's always like really peaceful on the hills. I get to travel so like all the hills around the world, the views and everything. The community is so positive in mountain biking. We're always up to help everyone, and yeah, that's why I love this sport. That's nice. Sounds sweet for something that's actually sounds so dangerous at the same time. Yeah. So, like, one thing specifically for Abel, like, Kashmir to Kanyakumari, Leh to Manali, world record attempts. Like, I have a lot of questions, but let's start with, like, and Mali, feel free to join in. Like, what do you think about it? But, like, पहले तो ये आइडिया कैसे आया कि मेरे को ये करना है, पूरा कश्मीर टू कन्याकुमारी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है? And as you went through it, like, क्या emotions बीत रहे थे? Like, how did you feel throughout 8 days of non-stop cycling? 3,600 kilometers, I think. 3,600 kilometers. Achieving those records was very mentally exhausting, physically exhausting.
क्योंकि आई थिंक इट वाज अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ 3600 किलोमीटर्स और इस पे राइड करना स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड कैसे इमोशंस रहे होंगे, क्योंकि जब मैं पहले दिन शुरू किया था अपनी राइड की सुबह अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 7:30 पे मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी फ्रॉम श्रीनगर। और मुझे लगा था पहले कि आसान होगा, क्योंकि 3600 किलोमीटर मुझे जब मैं जम्मू क्रॉस किया, पंजाब क्रॉस किया, दिल्ली क्रॉस किया, आगरा क्रॉस किया, ग्वालियर क्रॉस किया एंड डिफरेंट सिटीज़ क्रॉस की, मुझे लग रहा जब वहाँ पे साइन बोर्ड्स आते हैं कहाँ वहाँ पे लिखा होता था कि कन्याकुमारी स्टिल 1700 किलोमीटर्स, लाइक व्हाट, अभी भी मेरे को मतलब रोड इतना दूर दिख रहा है। सो बट हमें, क्योंकि जो मेरे आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल टू माई क्रू मेंबर्स, उनके बगैर इस राइड को कंप्लीट करना और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना एक इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया कि आप राइड पे फोकस करो, और वो मेरे लॉजिस्टिक्स को देखते थे, हमारे रिकॉर्ड जर्नीज़ को देखते थे। तो आई थिंक उनकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुआ। लेकिन क्रू कितना ही कर सकता है, चलाना तो मुझे ही है ना। और डेली 400 ऑलमोस्ट 440 किलोमीटर्स अबोव की राइड करनी पड़ती थी। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये चीज़ कि नहीं, हमें इस चीज़ आज ये टारगेट सेट करना, हमारा ये टारगेट सेट करना है डेली बेसिस पे कि कितने किलोमीटर्स की राइड करनी है। वॉज वेरी पेनफुल। छोटे छोटे ब्लस्टर्स निकले थे मेरी, जो सैडल एरिया होता है वहाँ पे छोटे छोटे ब्लस्टर्स निकले थे। एंड इमेजिन जब वो ब्लस्टर्स फटते थे, इतना अनबेरेबल पेन होता था कि हम लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते थे उस चीज़ को। और हम लोग डेली जब हम वैसे आप इमेजिन कर सकते हो, हम लोग 5 घंटे जब ड्राइव करते गाड़ी में बैठ जाते थे, हमारी ओबियसली हालत ख़राब हो जाती है। एंड इमेजिन कि 6 आवर्स की राइड करना और 18 घंटे राइड करना, 17 आवर्स की राइड करना, कितना हेक्टिक रहता होगा मेरे लिए। मेरी बैक, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी और ऑलमोस्ट सब ब्रेक हो गई थी, इतना ज़्यादा मैंने एफर्ट लगाया था उसमें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, क्योंकि बहुत जगह दिमाग में आया कि आई शुड क्विट, मुझे छोड़ना चाहिए अब। लेकिन लोगों को इंस्पायर करना और वो दैट केप्ट मी मूविंग कि आप चलते जाओ, आप जर्नी को ब्रेक करो। फिर भी जब कुछ नहीं चला, डे 7 हुआ था स्टार्ट, इवन रात के 2:30 बजे थे समथिंग, मैं ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर कुछ पीछे था, लेकिन मैं उसको ऑलरेडी कवर कर चुका था। मोर देन 4 और 3 आवर्स 5 आवर्स में उसको कवर कर चुका था। लेकिन फिर भी लेफ्ट नी में मेनिस्कस इशू की इंजरी आ गई, स्वेलिंग आ गई बहुत ज़्यादा। जो मेरे फिजियो थे उन्होंने बोला कि अगर आप सोचते हो कि आई शुड स्टॉप, तो आपको स्टॉप करना चाहिए, ज़्यादा इंजरीज ना हो जाए। तो मैंने अभी भी बोला कि माई पेरेंट्स आर माई मोटिवेशन, तो हमेशा मुझे मोटिवेट करता है। और जो भी कश्मीर की और पूरे इंडिया की जो लोग देते थे, जब हम लाइव आते थे फेसबुक पे ऑलमोस्ट 2:30 बजे 2 बजे रात के, तब भी रात के, मुझे अभी भी याद है, रात के 1 बजे भी 20,000 25,000 लोग हमारे लाइव सेशन में जुड़ जाते थे, जस्ट टू सी कि ये कहाँ पे पहुँच गया। और उसके बाद जब हमने रात के 2:30 बजे मैंने मम्मा को फ़ोन मिलाया कि बहुत अनबेरेबल पेन हो रहा है और मुझे लगता है कि मैं शायद कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, मेरी जर्नी को ब्रेक नहीं कर पाऊँगा। और मम्मा ने 2-3 वर्ड्स बोले कि पूरा नेशन देख रहा है। और ओबियसली आपके पास 2 चीज़ें हैं। अगर आप उसी स्टेज में, मैंने आपको भी बोला कि साइकिलिंग है चेंज इन माई लाइफ, जब से मैंने शुरू किया है ये उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। उसने वही बात बोली कि अगर आपको उसी मुकाम पे वापस पहुंचना है जहाँ से आपने शुरू किया है, वो आपके हाथ में। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो कि ह्यूमन कैन ब्रेक द लिमिट्स, वो चीज़ आपके हाथ में। तो वो मोटिवेशन मुझे हमेशा कानों में रही। उसके बाद मेरी टीम थी, मेरे फिजियो से मैंने उसके साथ डिस्कस किया कि अब राइड अगेन मैं कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ को, एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करूँगा। ओबियसली बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए, बट जो मेरा विल पावर था हमेशा से स्ट्रॉन्ग था और मुझे चैलेंजेस लेना बड़ा पसंद है। मैंने आपको भी बोला कि मुझे कोई भी अगर चैलेंज देगा, मैं उसको पहले सोचूंगा कि नहीं, फिर दिमाग में ये लूँगा कि नहीं, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट आई कैन डू इट। एंड जब मैंने फाइनली ब्रेक किया इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को विद अ लॉन्ग मार्जिन, तो तब जाके मुझे सर्टिफिकेशन मिली कि नहीं, मैंने फाइनली कुछ अचीव किया है। मैंने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया, पूरे नेशन को, वैसे जो आने वाली जनरेशन है जिनको मतलब आगे जाके ये मिलेगा कि नहीं, ह्यूमन कैन ब्रेक द लिमिट्स। और ओबियसली अभी 6th क्लास स्टैंडर्ड में मेरा बुक में एक मेरा चैप्टर है, वो साइकिलिंग के रिगार्डिंग है। आदिल तेली के नाम पे वो चैप्टर है, जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं कि आदिल तेली ने कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड की है और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है।
मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर हुए और जिन्होंने उसके बाद साइकिलिंग अडॉप्ट की और साइकिलिंग की कम्युनिटी में आए, आई फील प्राउड। क्वाइट लिटरली हिस्ट्री बुक्स के हिस्से हो गए हो। ओब्वियसली मैं हिस्ट्री बुक्स का एक हिस्सा हूँ। फिर दूसरे एंड पे माली जी, like long distance, I know you dislike long distance, but on the other hand, you hit, like, I've seen you hit some really big jumps. Even Pashan, like back home in Pune, you build, like, you don't build trails without jump. And then you hit them, like, where everybody else is wondering कि भाई इधर कैसे बोलिए? वहाँ बीच हवा कैसे पहुँच गए? Yeah, like ever since we started building on that hill, it's we at the first we just used to hit like small jumps. That's just big. And the one like concept with that hill was progression. So, and trail building was always like I started riding with trail building. So like I've been trail building as long as I've been riding. So if me my friends get bored with the small jump we've made, so next time we make it bigger. And अगर तो ऐसे progression होता है, we get really comfortable with this, we do tricks, everything that means we're just bored, then we get bored with it. Because एक ही jump कितना एक हफ्ता किया हो गया. Then we just scout more, and with scouting some jumps on the hill. And you also have to consider that it's just like 3 of us building at once or 2, or sometimes me akele, like how it is sometimes now. So we have to really consider that at least one element of the whole building process is natural, like at least the landing or the takeoff. Because utna dirt you cannot just shovel single person. So with that we go on scouting, like they just walk around the hill, see these slopes and everything, and we like imagine going from this side of the hill to that side, and then we look at the run up, we look at the run in landing, and then we make the jumps. And that's how like we have progressed. Just keep making bigger chunks after your board. And now we are at a point where 20 foot ke jump mare, a big foot, like high 20 foot long, like same, like big jumps. And now like I've really like dialed in how a jump works. Like just by looking at a big takeoff, I can know what speed I need to hit it, what trajectory I'll do. So now I've just learned how jumps work by building and hitting them. So I've hit basically like the biggest jump in India, that's Ladakh. Self-taught. Yeah. आपका भी like working long distance cycling, आपका self-taught था या फिर you have like coaching? ऑब्वियसली हमें कोचिंग की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, क्योंकि जैसे मालिक सेठ कि हमें ट्रायल खुद सेलेक्ट करते हैं हम किस ट्रायल पे करेंगे, लेकिन हमारा एक डिफरेंट तरीके में रहता है कि हमें किस जोन में ट्रेनिंग करती है, किस हार्ट रेट पे। जब जैसे मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग शेड्यूल्स रहते हैं। अगर हम मंडे को राइड कर रहे हैं किस इंटेंसिटी के साथ हम राइड करेंगे, अगर हम ट्यूसडे को राइड कर रहे हैं किस इंटेंसिटी के साथ राइड करनी है, कौन सी हार्ट रेट हमें सेट करनी है उस ट्रेनिंग पे। तो हमारा एक डिफरेंट है, इसलिए मैंने बोला MTB एंड रोड साइकिल वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट, क्योंकि इसमें अलग से चीज़ें रहती है और MTB में अलग से चीज़ें रहती है। सो जब भी हम राइड करते हैं हमारा इंटेंस बेस्ड, पावर बेस्ड एंड हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग रहती है। वो भी आपका एंड्योरेंस सब मैच करने के लिए? या डेफिनेटली हमें एंड्योरेंस, हमें स्ट्रेंथ मैच करने के लिए कि आज कितना एफर्ट लगा रहा है, हमारे नेक्स्ट दिन में कितना एफर्ट लगा, तो ऐसे। तो जब आपने ये 8 days किया था कश्मीर टू कन्याकुमारी, उसमें क्या हार्ट रेट अपने कांस्टेंट रखने की कोशिश किया पूरे 8 दिन? वैसे जब मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी किया था उसमें हमें जो हार्ट रेट बेल्ट लगा के होता है वो हमारे जो सामने स्पीड मीटर होता है वो उसके साथ मैच होता है। ऑब्वियसली जब वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वो वहाँ पे राइड चेक करते हैं, वो लोग हमारी स्पीड और हार्ट रेट को चेक करते हैं कि अगर ये इस स्पीड के साथ चला है क्या इसकी हार्ट रेट इतनी रही है। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, वन थिंग आई विल क्लियर है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ये तो गाड़ी में भी जा सकता है। ऑब्वियसली इट्स पॉसिबल, लोग पूछ सकते हैं। तो क्या है कि जब भी हम ऑब्वियसली मैंने अभी बोला कि हमें हार्ट रेट बेल्ट लगा होता है और वो उस मीटर के साथ कनेक्ट होता है। ऑब्वियसली जब हम कोई भी राइडर अगर लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट करता है, अगर वो गाड़ी में बैठ जाता है, उसकी जो हार्ट रेट है वो बिल्कुल डाउन आएगी, क्योंकि वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, वो कोई एफर्ट नहीं मार रहा। ऑब्वियसली उसकी जो स्पीड रहे वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस अटैम्प्ट को रिजेक्ट करेंगे। तो यू हैव टू बी मेंटेन, जब भी आप राइड कर रहे हो वहाँ की जो हम हार्ट रेट, जिस हार्ट रेट में हम चल रहे हैं उसी हार्ट रेट में जो आपकी स्पीड रहेगी
वो ऑटोमेटिकली दिख जाती है कि अगर इसने इस हार्ट रेट पे चला, इस टाइम इसकी ये स्पीड होनी चाहिए। तो दैट्स वाई कि मैं पूछता हूँ कि हमारी जो ट्रेनिंग रहती है वो हार्ट रेट बेस्ड रहती है एंड पावर बेस्ड रहती है। और जब भी जो मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी किया था, मुझे उसमें मेंटेन स्पीड रखनी पड़ी थी कि मुझे पता था आज का टारगेट मेरा ये है, मुझे अगर ये स्पीड मेंटेन रहेगी तो मैं आज ही टारगेट को अचीव कर पाऊँगा। तो वेरिफिकेशन के लिए बेसिकली और तो बस फिर आप बैकअप भी लगाते हो हार्ट रेट मॉनिटर? ओबियसली हमारा मेरे 2 स्पीडोमीटर्स रहते थे ओबियसली, क्योंकि हमें जो स्पीडोमीटर्स रहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहता है। हमें हर 50 किलोमीटर्स के बाद एक विटनेस चाहिए कि आदिल को यहाँ पे इस बंदे ने राइड करते हुए देख लिया, उसके विटनेस चाहिए, उसका एड्रेस, उसका ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करता है, उसने को कब देखा, किस टाइम पे देखा, वो विटनेस भी चाहिए। तो ये विटनेस क्या मतलब आप लोगों ने लोगों को कांटेक्ट किया था या रैंडमली किसी को पकड़? किसी भी जो भी रोड पे मिलेगा, जो भी टोल प्लाजा है, जो भी रोड पे कोई फ्रूट सेलर है, कोई भी होटल है, जो भी रास्ते में पड़ता है, वो मुझे राइड करते हुए देखा था। मेरे जो क्रू मेंबर्स पीछे रहते थे वो उनसे कांटेक्ट करते कि आपने यहाँ पे राइडर को जाते हुए देख लिया। ओवैसी वो बोलते कि हाँ अभी यहाँ से राइडर गया है, तो वो अपनी डिटेल सबमिट करके देता था कि ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा इस टाइम पे मैंने इस राइडर को देख लिया। क्योंकि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा वेरिफिकेशन के लिए एविडेंस चाहिए। यही नहीं, मैं अगर कहीं पे स्टॉप करता था, ओब्वियसली वहाँ पे जो मेरा स्पीडोमीटर है वो स्टॉप हो जाता था। हमें वो भी जो मेरी टीम मेंबर्स है उनको वो भी नोट करना होता था कि यहाँ पे आदिल का स्पीडोमीटर हुआ। फॉर एग्जांपल अगर ये यूरिन करने के लिए चला गया, फ्रेश होने के लिए चला गया, इसकी वजह से इसका मीटर स्टॉप हो गया, तो वो चीज़ भी वहाँ पे मेंशन करनी पड़ती थी फॉर द वेरिफिकेशन कि इसके एविडेंस में कोई दिक्कत ना हो। फुल डॉक्यूमेंटेशन इसमें कंप्लीट होनी चाहिए फॉर राइडिंग टिल आपकी जो भी आप राइड कर रहे हो, जो भी आप रास्ते में चल रहे हो, वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। सबके क्रू मेंबर्स थी काफ़ी काम पे। ऑब्वियसली मेरी क्रू मेंबर्स में 8 मेंबर्स है, जिसमें फिजियो, न्यूट्रिशनिस्ट, कैमरामैन, मैकेनिक और जो भी डॉक्यूमेंट संभालता है, अलग अलग को सब काम डिवाइड किया गया था। मैंने अभी भी बोला कि क्रू मेंबर्स के बगैर कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट लेना हम बस सोच सकते हैं, लेकिन क्रू मेंबर्स ही आपको एनकरेज करते हैं, क्रू मेंबर्स ही आपको बताते हैं कि कीप गोइंग और कीप इंस्पायरिंग पीपल, क्योंकि वो सब पीछे हमारी जो लॉजिस्टिक्स है उनको देखना, मुझ तक खाना पहुंचाना, तो वो चीज़ सिर्फ क्रू मेंबर्स का ही रहता है इसमें। और खाना आपको जैसे ऑब्वियसली ऑन द बाइक हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जैसे जूसेस है, जैसे राइस बॉल्स है, जिसमें राइस बॉल्स में पनीर मिक्स करके होता है, उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करके होता है ताकि मुझे भूख ना लगे। ओवैसली फ्रेश फ्रूट्स है, ओवैसली कोकोनट वाटर रहता है, बहुत सारे इनमें प्रोटीन शेक्स रहते हैं। जब भी हमें कुछ हेवी खाना पड़ता था, जब भी मेरी स्ट्रेचिंग होती थी, जब मेरा फिजियो का सेशन रहता था हाफ एन आवर का, तो तभी मैं थोड़ा हेवी इंटेक करता था राइड के लिए। बाकी जो भी मेरा लाइट फूड होता था वो मैं बाइक कार से मुझे घर पे दिलाया जाता था। अरे और अब एक दिन में 450 कुछ तो बोले हैं। हाँ, अभी मेरा एवरेज ही था, क्योंकि मेरी टीम जो मेरे पीछे थी वो मुझे कंटिन्यू बता रहे थे कि हमें डेली एवरेज को अप्रॉक्सीमेटली 438 किलोमीटर। उसमें डू यू समटाइम्स डू टू लाइक ज़्यादा फीट के हिसाब से या कम? हाँ, क्या होता था कि जब हम कश्मीर टू कन्याकुमारी चलते, इसमें आपको बहुत जगह पे टाउन हिल भी आता है, तो उस टाइम के उसकी वजह से हमें कभी कभार किलोमीटर्स कुछ ज़्यादा पड़ते थे, तो नेक्स्ट डे पे हम उसी हिसाब से किलोमीटर्स राइड करते थे। तो इसी वजह से मैंने क्या हुआ था, मैंने जो लास्ट ईयर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया, वो मैंने इसकी वजह से ज़्यादा मार्जिन में ब्रेक किया क्योंकि मैंने ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लिए थे। मैं ज़्यादा देर सो नहीं रहा था। मैंने ऑलमोस्ट 24 आवर्स में से 6 to 7 आवर्स की मेरा रिकवरी रहता था आउट ऑफ 24 आवर्स। तो उसकी वजह से मैंने एक अच्छे मार्जिन से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया था। पिछला मार्जिन क्या, पिछला रिकॉर्ड कितना था? जो लास्ट वाला रिकॉर्ड था वो नासिक का था और मार्जिन उनका नाम है, वो था 8 days and 7 hours and 39 minutes। तो जो मेरा रिकॉर्ड था वो था 8 days 1 hour and 39 minutes। 6 hours से बीट ऑलमोस्ट यस, 6 hours मैंने बीट किया। तो ऑलमोस्ट पर डे लगे अराउंड 45 मिनट्स ज़्यादा। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली मैंने 45 hours 47 minutes मैंने उसको हमेशा डेली बेसिस पे कवर करता था। तो ये सब आप बोल रहे हो कि रिकवरी टाइम में कट हुआ? हाँ, रिकवरी टाइम में पेस वेरिएशन भी थोड़ा बहुत था एंड रिकवरी टाइम में भी कट हुआ। और आपका एज इन स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड क्या मेंटेन किया आपने? बेसिकली क्या होता है कि हमें जब हम डेली बेसिस पे चलते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया कि हमें 24 आवर्स में मीटर कंटिन्यू ऑन रखना पड़ता था। आपको अपना स्पीडोमीटर ऑफ नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह से मुझे स्पीड को मेंटेन रखना पड़ता था कि जैसे मुझे पता था अगर मैं 23, 24, 23 की स्पीड की मेंटेन रखूँ,
अगर हम ऑफ स्पीड मीटर ऑफ रखेंगे या ये ऑन रखेंगे तो जब हम रुक रहे हैं फॉर फिजियो सेशंस रेस्ट सेशन तब हमारा मीटर ऑन रहता है, तो वो स्पीड एवरेज है वो डाउन हो जाती थी। तो इसकी वजह से मुझे पता था कि मुझे 24-23 आवर अगर मेंटेन रखनी है, सो समथिंग अबाउट 18 पॉइंट कुछ हमारा जो 24 आवर्स की एवरेज आती थी, फिर रेस्ट लेके राइड लेके वो 18 पॉइंट समथिंग कुछ एवरेज आती थी, तो वो चीज़ हमें मेंटेन रहता था तो पूरा दिन का 18 पॉइंट समझ रहे विद रेस्ट। विद रेस्ट बट आपका हायर स्पीड कितना, मतलब ऑलमोस्ट कितना क्लॉक के? हाई स्पीड उसमें क्योंकि एक जगह पे अच्छा खासा डाउन हिल आया था, वो स्क्रैच काफ़ी 4-5 किलोमीटर का डाउन हिल था, वहाँ पे जस्ट मैंने खूब पैडलिंग की थी, समथिंग वो 67-68 गया था मेरा हाईएस्ट वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पूरा डाउन हिल अच्छा खासा स्क्रैच था, तो बाइक पे जस्ट क्योंकि एरोबाज लगे थे मेरे, तो उसकी वजह से मुझे हेल्प मिला बहुत ज़्यादा। और फ्लैट पे कितना मेंटेन किया? फ्लाइट पे तो मैंने अभी बताया कि फ्लाइट पे मेंटेन रहता था, बॉडी के हिसाब से डिपेंड करता था, अगर मेरी बॉडी फ्रेश रहती थी तो उस हिसाब से चलता, जब मैं ज़्यादा क्योंकि इसमें फैटिक बहुत ज़्यादा आ जाता है, जब मुझे मेरी बॉडी में ज़्यादा फैटिक आता था उसी हिसाब से स्पीड भी चल रही थी, लेकिन जब मेरी बॉडी फ्रेश रहती थी तो उसी हिसाब से स्पीड भी चल रही थी। और माली, one of the sports you do is enduro sometimes. I think you're going more for downhill, pure downhill, yeah. Like I guess before we go deeper into that, like एक बार maybe you could explain to other any कि pure downhill और enduro में difference क्या होता है? बोथ फॉर्मेट्स में टाइम होता है। बेसिकली पहाड़ के टॉप से बॉटम तक ट्रैप होती है और यू गेट टाइट, अभी टाइम जितना कम वो विलन। एंड अभी डाउनहिल इवेंट्स में एक ही रेस होती है ऊपर से नीचे, उसमें अगर क्वालिफिकेशन होती है और फाइनल, बट फाइनल एक ही लैप होती है। एंड्यूरो में देर आर बेसिकली एक ही पहाड़ पे और लाइक पहाड़ के रेंज पे अराउंड लाइक मल्टीपल सीरीज होते हैं, लाइक मल्टीपल डाउनहिल कोर्सेज, तो सबकी टाइम निकलती है, सबकी टाइम फिर एड अप होती है। तो बेसिकली इट्स लाइक एवरेज, लाइक सब अलग अलग ट्रैक्स के टाइम मिल के फिर रिजल्ट आती है। सो अगर डाउनहिल में सपोज 2 मिनट का ट्रैक है तो वो 2 मिनट का ही निकलता है, मतलब 2 मिनट से कंप्लीट होगा जो ट्रैक का होता है। फॉर टेरेन एंड डाउनहिल आल्सो। हाँ, और एंड्यूरो में ऐसे 7 रेस होते हैं एक साथ। सो फिर बेसिकली अगर आप एंड्यूरो में और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, एक ही रन नहीं होता है, बट डाउनहिल में हैव टू मेक श्योर दैट वन रन इज लाइक एज फास्ट एज पॉसिबल। और enduro में ये भी होता है ना कि once you come downhill, finish the first race, then you have to pedal back up. या एंड एंड्यूरो में आपको पहाड़ के ऊपर वापस चढ़ना पड़ता है, बट वो बस टाइम नहीं और काउटी पर हाँ टाइम स्लॉट होता है। हाँ, एक सर्टेन टाइम के अंदर खत्म करना होता है, वही होता है, घंटे में चढ़ना है आपको, बट वो आपके ओवरऑल टाइम में काउंट नहीं होगा, सिर्फ डाउनहिल पोर्शन। बट अगर आपने 1 घंटा 1 मिनट लिया तो आपके रेस टाइम में घुस जाता है 1 मिनट। तो अपहिल एंड्योरेंस है उसमें थोड़ा विद एंड्योरो ना, fatigue basically while riding on difficult terrain. so I guess the biggest race India में जो enduro है वो तो Mondioro है। Yeah. I think last year was your first time. Yeah. So like, what do you think, enduro or downhill do you prefer? Enduro, it's good, but like for me, I like downhill better. But yeah, I prefer downhill basically. I have no specific reason. I love racing in any format, but yeah, I feel like I'll do better in downhill than enduro, and also like the fatigue element along with like sketchy terrain and everything. Like I feel like what I want to achieve while racing, it's a little. I mean, it could be done in enduro also, but I prefer downhill basically. So let's shift from racing and all this and all your practice sessions to like more lighthearted, general things about your life. Or maybe what we were discussing with Aaron and Titus was also like the after parties in Mondioro. वो तो crazy होती है, but ऐसे long distance जब आप events के लिए जाते हो cycling, now you're choosing to do long distance more right now, right? Focus on long distance cycling. Yeah, currently I'm focusing on racing. मैंने 2022 से शिफ्ट किया था, वापस रेसिंग में फोकस किया था। सो करंटली आई एम फोकसिंग ऑन प्रोफेशनल रेसिंग currently, and definitely I will take more attempts in future for the long distance, but currently I am focusing only racing. So that's why we have upcoming competitions ahead, so that's why I'm preparing for this. So when you go for these events,
I'm not going to ask about the competitiveness. I'm going to talk about pre-event, post-event. ये आपके parties होते हैं या कुछ crazy stuff होता है या it's just like okay bye मैं जा रहा हूँ. Come out the race. नहीं मेरे मुझे हमेशा मैं जब भी मतलब बस की पार्टीज़ होती है जब भी हम अपने रेस ख़त्म करते हैं पोस्ट ट्रेनिंग पोस्ट नेशनल्स हमारी पार्टीज़ होते हैं और सारे लोग वहाँ पे होते हैं जो एंजॉय करते हैं आधे क्योंकि आधों के मेडल्स आए होते हैं वो भी एंजॉय करते हैं आधों के मेडल्स नहीं आते वो भी एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको भी अपनी टेंशन होती है कि मेडल नहीं आए चलो आप एंजॉय कर लेते हैं थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लेते हैं तो यार मुझे लगता है उनको इस चीज़ से रियलाइजेशन मिल जाती है थोड़ा बहुत चलो लेट्स गो फॉर सम पार्टी तो मे बी वो चीज़ है तो जब हम लोग मॉड्यूलर गए थे तो देन आई रियलाइज कि माउंटेन बाइकिंग पार्टीज स्पेशली इंडिया में थोड़े क्रेजी होते हैं. Mountain biking now with enduro parties. Imagine these high energy individuals trying to drink some alcohol and then lancing the ship going down. नहीं आई सॉ यू नॉट ड्रिंकिंग. अभी जो पर्सनालिटी कैमरा पे दिख रहा है उसका इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. तेरे बस को एक दो बियर फिलहाल तो Yeah. How very you keep all the efforts you put in, even if you like वो सब सिंक इन हो जाता है ना finally like the result is over. Sometimes it's not good, sometimes it's good. It's good, you celebrate, it's not good, you're like okay finally it's over. so like Mali you were talking about na cash. I remember in Nepal training camp after the training camp. Yeah. Last day पे जो party हुआ था when we went and looked at Nepal's biggest club, top 10 biggest clubs and others, and I remember I remember everything. Abhishek ne koi our guide in Nepal, he took us to some small stall outside of the bars सस्ते में अल्कोहल मिलने के लिए. 2 बोतल तकीला लेके दोनों के आधे बोतल मालिक के थ्रोट की खत्म किए. हाथ लेकर my god. उसके बाद तो Because the club दारू was too expensive. So we like how come then we went उधर ही रास्ते पे ही taking big shots, full cups. Everyone is having. शॉर्ट नहीं था it was full like कप लिया और सबको शॉर्ट पिलाया full. सब पिला रहे थे. मालिक को तो एक्स्ट्रा क्यों पिलाया. But I survived to tell them again. When I went back to the hotel room, Titus and I were talking outside, and Mali was in the toilet, and we could just 2 घंटे बाकी था. And then I think you passed out in the toilet for a while. I got out. I was just feeling sick. उसके बाद तो छोड़ दिया. हार लेकर no. Yeah, it's like first time we saw you drinking, last time we saw you drinking. Quit कर दिया permanently. Yeah. But Nepal training camp was fun. Like Neerav and Chris are like cool guys to chill with. Even the things how they go down in Tawang. So like you saw how Neerav and all raced, and they were clearly like faster than us in general. Like in general, the speed and the competitiveness in Nepal was higher than in India. Like, did you feel the difference? Could you feel the difference in them going downhill versus you going downhill? Like the quality of riding versus quality of riding. Yeah, there is like some riding style different obviously, and thing is just more consistent, and they're like used to riding natural tracks like how it is in Monduro, because like the terrain is closer to them than it's closer to me, you know, like I live way down, so they're really used to riding that kind of terrain and riding blind, like not knowing what's around the next corner. So like just the commitment of them on raw terrain, it's that's the difference I feel like in Monduro. And what about you, Keej? Like, do you notice any difference between the foreign riders, the top level riders versus you and India in general? Yeah, obviously there's a difference between foreign riders, and there's a difference only in training, their training schedule, their focus on diet, because
they are also humans. So I think their routine was very tough. तो दैट्स मैं ये चीज़ समझता हूँ कि उनमें और हमें डिफरेंस अगर इतना ही है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, वो भी हार्ड वर्क करते हैं, बट वो स्मार्ट वर्क करते हैं। उनको पता है कौन सा वर्क क्या करना है, उनका ट्रेनिंग शेड्यूल, उनका डाइट प्लान बड़ा फिक्स रहता है इन चीज़ों के लिए, और वो उसको नेगोशिएट नहीं करते इन चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि दैट्स वाई कि वो हमसे अभी आगे हैं। और ऑब्वियसली हम लोग भी मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुछ कमियां अभी भी रहती है जिसमें हम अभी इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो उन चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें ऑब्वियसली जब हम उन चीज़ों में अडॉप्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें भी ऑटोमेटिक, अभी बहुत सारे राइडर्स अभी प्रेफर कर रहे हैं बाहर जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, इवन बेल्जियम, जर्मनी, बहुत सारे इंडिया के राइडर्स अभी जो हमारे टॉप राइडर थे साइकिलिंग के, बाहर ट्रेनिंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो फुल टाइम रेसिंग ही है। तो अभी यही डिफरेंस है कि उनका वो ट्रेनिंग और उनका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, उनका जो डाइट शेड्यूल है, उनका जो रहने का शेड्यूल है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो लोग अभी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। तो अभी इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर सॉर्ट हो गई है। हाँ, एडिकेटेड डेफिनेटली अभी वो जो टेक्नोलॉजी बाहर है वो अभी डेवलप नहीं है इंडिया में, और अभी प्रोसेस कर रहा है थोड़ा बहुत धीरे धीरे, बट उतना भी नहीं जो अभी फॉरेन में है, क्योंकि उनको पता है हमारी मसल, कौन सी मसल वर्क करते हैं, हमारी कौन सी मसल वर्क नहीं करते हैं, उस मसल पे काम करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें वहाँ पे उनको, वहाँ पे हाई क्वालिटी साइंस लैब्स है, टेक्नोलॉजी लैब्स है, जिनके वो राइडर को ऑब्जर्व करते हैं पूरा। तो वो चीज़ अभी भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो जिसकी वजह से मे भी मुझे लगता है कि ये ड्रॉबैक है, ये जो इसमें हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। But you think there's also difference ये like seriousness में जो होती है प्रोफेशनल सोशल सीरियसनेस में कि लोग थोड़ा और सीरियसली ले रहे हैं, जिनकी वजह से डिफरेंस पड़ रही है परफॉर्मेंस में, या एथलीट्स ही बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंस लगता है आपको? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उनके साथ रहा, मैं जो करंट वर्ल्ड चैम्पियंस है, ओलंपिक चैम्पियंस है, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 1 मंथ मैंने उनके साथ स्पेंड किया। मैंने उनका ट्रेनिंग शेड्यूल देखा, उनका जो रहने का, उनका खाने पीने का शेड्यूल देखा, वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, और वो अपने उस चीज़ को बड़ा फॉलो करते हैं। और अभी बात हुई थी, उनके पास हाई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैंने रिसेंटली मैं उनके साथ रहा था, एक बाइक 20 लैक्स, 22 लैक्स, 50 लैक्स की उनके पास बाइक है जो वो राइड करते हैं। और वैसे उनकी वजह से भी थोड़ा बहुत एज मिलता है उनको, लेकिन क्या है, वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। उनको पता है जो उनके साथ टीम्स है, उनके ऊपर, साइकिलिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत सारी नेशंस इसमें खेलते हैं, और बहुत सारी प्रो टीम्स इसमें हैं, और उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली उनकी सीरियसनेस थोड़ी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन एथलीट्स, लेकिन वर्क इंडियन एथलीट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ वैसे स्मार्ट वर्क भी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसकी वजह से हमें पता चले कि हमें हमारी बॉडी में कहाँ पे कमी है, हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, तो उस एरिया में हम ज़्यादा वर्क करेंगे। तो वो चीज़ अभी भी थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं हम। Yeah, even in mountain biking, I feel like as an Indian athlete, we are almost have to work even more harder than foreign athletes in some ways, because not only we have to grow ourselves by training, we also have to grow the infrastructure around us while we are training, like tracks and everything. So there are a lot more things on our mind, like just than just going to race training and everything. So I feel like being an Indian mountain biker who is making it to the top is like almost like twice the effort. road feels longer and higher. Yeah, because we are also setting the pathway while we're doing it, and we're getting out the tracks for nationals, doing everything, working with the federation, then things happening. So करना पड़ता है हमें. If you have to multiple times, you have to be involved in events, organizing, and right now the community itself helps each other out, selling bikes, selling parts, talking about new coming races, planning about races. So right now it's all like together, which is also a like really cool thing. You guys are like one of the first few generations in mountain biking in India, no? Yeah, like I think Third gen. yeah. First gen, I think, was Vinay, and And I got in Dowdy. second gen is Second gen. nobody knows the second gen. Somebody numbers. Yeah. That's second gen. I was trained by the second gen. You know, Who trained you? like, but I'm talking about the Pune, like the Pune. That's up. But Ismail is also like in the second. Second gen. Yeah, Usman Mother is like a legend. in this. So Ismail, like he didn't like, but I'm talking about Pune. Second gen में there's this guy Slade. Then his like basically they're studying mechanical engineering in Pune,
and they're also mountain biking. So they had this house next to Pasha, so we used to ride there. So basically these guys taught me like how to ride bikes, and we always used to build trades. So that's basically like the second gen for me, and then I'm the third gen. Now I'm training the fourth gen, which rides at my hill every day. It's funny, like 22 years old, I just Yeah. already trained. I'm already new kids are there on the hill right now, riding, planning rides. Oh, are you running at safe? Give it Are you coming today? No. then has he further? Yeah. Still happening. So it's just great, man. Now it's almost like the community is self-feeding. Like kids are Growing. getting their school kids, like friends, riding more, and I can see the progression they are doing. Now, like they are hitting. I can see how I progress while riding. Now they're doing tricks on the jumps, which I have been hitting. So like I'm super proud how it's going. Proud of your kids. Yeah, proud of my mountain bike kids. So let's wrap this up with a question I plan on making tradition. Is like, if it wasn't for the sport, mountain biking or road cycling, क्या कर रहे होते आप? अगर मैं साइकिलिंग में मे बी मैं पॉलिटिक्स में जाता, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं हमेशा क्लास में भी पॉलिटिकल साइंस में ही टॉप करता आया हूँ. तो मे बी मुझे लगता है कि अगर मैं साइकिलिस्ट नहीं होता तो मैं डेफिनेटली सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट होता. रहते नहीं होता हूँ. बट आई एम रियली सेटिस्फाइड कि मैं साइकिलिंग मैंने चूज़ की है, क्योंकि द वे मेरी जो लाइफ चेंज हुई इन साइकिलिंग में फिट रहा. सो मुझे लगता है कि आई एम रियली सेटिस्फाइड विद माई डिसीजन कि मैंने साइकिलिंग चूज़ की. Nali? I guess if I wasn't racing, then I probably would be working a desk job somewhere in my field, What is your field? electronics and telecommunications. So developing things, metering, like designing processors and everything. I love that too, and but it's just that, yeah, just for the money. Like eventually, I will have to, I guess. But yeah, I would like be riding casually if I would be riding, or maybe something nerding out. But yeah, not some. I'm doing what I love to do right now. So. I definitely don't see you doing a desk job. Yeah, I'm not that kind. We just be sitting around and like. Yeah, maybe 1 or 2 days nice, or maybe a week nice. After that, I need to get out. Yeah, because now I'm spoiled now, because mountain biking has changed my life. I could have done a desk job before, but once I know how it is riding bikes, cycles, racing, now there's no going back. It's changed my life, and now my whole life is dedicated towards that. So now everything I do, even earn money, will be towards that. You're a mountain biker from now on. Yeah. Now, yeah. Life changed. Correct answer. Now you're not. Fucking Alright. That was another episode with Pop, Snap and Zap. Thank you for joining us. Thank you. And as always, Zaza is nowhere to be seen. Zaza is sleeping. Zaza is napping, either eating or napping. Yes, we will see Zaza Like me on the episode. eating, sleeping. Athlete का lifestyle वही होता है. You eat, Train sleep, करो, get hurt, and then sleep. and recover. Yeah, Then I wake up in the morning. Oh shit. मेरे लिए ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 10 days ट्रेनिंग ओनली रूम, अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग ओनली रूम, दिल तो बाहर ही नहीं जा रहा मैं इन 10 दिनों में. तो मुझे लग रहा है मेरे लिए ज़्यादा सूट कर रहा है कि मैं सुबह ट्रेनिंग. लाइफ स्किप हो रहा है, ज़्यादा ट्रेनिंग हो रहा है. Those are the sacrifices you have to make. I remember. Firstly, like ऐसा कि माटी टाइटस बाहर जा रहा है, कहाँ भाई घूमने जा रहा है, बाहर तक जाना है. तो आयरन कहाँ भाई बाहर जाना है. मैंने बोला ओके भाई कॉफ़ी खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, सो लेता हूँ. तो लाइक मॉर्निंग अभी गेट्स आउट ऑफ द रूम. कोई नहीं यार आज भी लाइक कल कॉफ़ी बना देता. बट आई ऑब्वियसली जब भी मैं आउट ऑफ राइड, मैं मतलब रिकवरी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ. मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं घूमूँ फिर उधर जाऊँ वॉक करूँ, क्योंकि चलने से भी फिर थोड़ा बहुत फैटिकनेस फील होता है.
तो आई ऑलवेज प्रेफर कि खाना पीना ट्रेकिंग सोना वापस बैक। और ऐसे सीन भी आप दुनिया कम देखते हो, आप तो पूरी दुनिया देखी है। तो एक बस सुबह रोड 200 किलोमीटर सुबह रोड पे जाते हैं ट्रेनिंग पे, लाइक 70-80 किलोमीटर्स 120 किलोमीटर्स 150 किलोमीटर्स की राइड होती होगा, इसलिए हम सब कुछ देखते हैं। तो मुझे फिर ये नहीं लगता कि हम यार वापस जाना चाहिए बाहर, चलो घूम के आते हैं। बट हाँ, इट्स ओके कि ट्रेनिंग करके आओ, खाओ पियो, फिर से सो जाओ, थोड़ा बहुत वॉक करो, दैट्स इट अगेन। आप राइड करते म्यूजिक सुनते हो? हाँ ऑब्वियसली, जब भी क्योंकि हम लोग बीट्स में म्यूजिक बीट्स सुनता, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप राइड करते हो तो बोर हो जाते हैं फॉर 120 किलोमीटर्स, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट सैटरडे मेरी 220 किलोमीटर्स की राइड है। यू कैन इमेजिन कि 220 किलोमीटर्स में आप कितने बोर हो जाओगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत Because without music, your brain will just be keep running, you know, thinking about everything possible. My brain will just be. Racing के वक्त you're allowed to listen to No, we are not allowed to put a microphone in Communication device. no communication devices. अब रेसिंग में जब भी हम रेसिंग करते हैं तो आपको अलाउड नहीं है कि आप And it's good also because you need to communicate something. communicate with other riders. That's why. Yeah. चलो ठीक है. Thank you. Thanks for joining us. Yay! See you next time. Good luck with training Thank you so much. and good luck with the upcoming national games. Yeah, thank you.